are you all doing? I hope you all are doing really well. This is Manisha Jha with you, and today we are going to learn about rocks and minerals. What is rocks and what is minerals? How rocks form? Rocks कैसे बनता है, क्या होता है और रॉक से क्या बनाया जाता है? What is the importance of rocks in our lives? What is the role of rocks in our lives? और minerals क्या है, इसके क्या क्या uses हैं, कितने types के होते हैं? चलिए इसे और अच्छे से डिटेलिंग के साथ में जानने के लिए चलते हैं सिमरन मैम के पास। is for Science, Book 4, Chapter 5. Hi students, I am Simran with you and today's topic is food and its digestion. Why is actually food important for us and what is the entire process of digestion is what we are going to read in this chapter. So about the lesson we are going to study about food, then types of food, that is nutrients, and the digestive system and different organs that are involved in the digestive system. So let's tune up, identify and name the given food items. So you have a couple of food items here, you just have to identify them. For example, potato, eggplant and all of them, you just have to write their names. Now students, let us start with the topic food. So why is food a basic need for us is going to be the main heading, and the now we will talk about rocks. We all live on earth. Living things and non-living things all exists on earth. Rock जो है वो non-living thing है. Rock is a non-living things. What is rock? How it is formed on earth? चलिए इसे और अच्छे से डिटेलिंग में जान लेते हैं. chapter is going to revolve around this topic. So food is the need of all the living beings. Why is that? Because इससे हमें क्या मिलती है? We get energy from the food that we take in, and then उसी energy से we do different activities, be it learning, be it walking, writing, singing, talking, speaking, playing, whatever you do throughout your day, उसके लिए एनर्जी आपको फूड से ही मिलती है. अपार्ट फ्रॉम दैट इट हेल्प्स अस टू ग्रो एंड टू स्टे हेल्दी. अलग अलग न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं जिनसे आपको डिजीजेस को फाइट कर सकते हैं. सो इफ यू वांट टू ग्रो प्रॉपर्ली, यू वांट टू स्टे हेल्दी, यू नीड टू हैव गुड फूड सो दैट आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकें. एंड व्हाट आर दीज न्यूट्रिएंट्स? आपके खाने में कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जिनसे आपकी बॉडी ग्रो करती है, हेल्दी रहती है, एंड दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज. Students, we have learned about rocks. The topmost layer of the earth is crust is rocks. Now we will discuss about igneous rocks. What is igneous rocks? How does it work? इसकी क्या क्या importance है, इसका क्या role है? चलिए इसे और अच्छे से डिटेलिंग में जान लेते हैं. Now students, let us understand about igneous rocks. अब igneous rocks जो आपके होते हैं, these are the earliest rocks that are found on the surface of the earth. Now igneous में जो igneous है इसका मतलब ही होता है something which is formed from fire or from something related to fire, like molten magma. यही molten magma जब volcanoes erupt होते हैं उससे बाहर निकलता है, it cools down and it solidifies, it gets converted into igneous rocks. कैसे होता है? Because these types of rocks are buried deep inside the earth. They melt because of high pressure and temperature, क्योंकि अर्थ का जो कोर पे टेम्परेचर है इट इज वेरी हाई, तो वहां से वो आपके बर्स्ट आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं. एंड देन ऊपर की तरफ वोल्केनिक इरप्शन से जो आपके एक्सटर्नल साइड पे मैग्मा आता है, इट इज एक्चुअली दिस द मोल्टन रॉक इज कॉल्ड द मैग्मा. जो बाहर की तरफ निकलता है, बाहर निकल के आपका यही मैग्मा को हम बोलते हैं लावा. जब तक मैग्मा अंदर की तरफ है, इट इज कमिंग अपवर्ड, तब तक ये मैग्मा होगा. एज सुन एज इट कम्स आउट ऑफ दैट structure we call it lava, and then this lava solidifies, cool down होता है, solidify होता है, और इस टाइप के rocks को हम बोलते हैं igneous rocks. Now again we have different types of igneous rocks, like number one is pumice. लाइट ग्रे कलर का होता है या क्रीम कलर का आपको देखने को मिल सकता है, लाइक दिस. ये आपका जब तुरंत ही लावा बाहर निकला, मैग्मा बाहर निकला, लावा तुरंत सॉलिडिफाई हो जाता है, तो आपके प्यूमाइज बनते हैं. एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी पोरस ऑल्सो. दैट मीन्स पोरस का मतलब क्या होता है? बहुत सारे छोटे छोटे होल्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं, इन विच द गैसेज आर ट्रैप्ड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि जब ये फॉर्म हो रहे होते हैं. नाउ दिस इज द ओनली रॉक अमंगस्ट ऑल द रॉक्स दैट कैन एक्चुअली फ्लोट ऑन वाटर. ये आपकी कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में यूज होता है, एंड इज ऑल्सो यूज एज अ स्क्रबर टू रिमूव डेड स्किन. कभी कभी आप अपने एंकल्स के डेड स्किन को रिमूव करने के लिए एक स्क्रबर यूज करते हैं, इट इज एक्चुअली प्यूमाइस.
Then second type of igneous rock is basalt. Basalt is dark in color as you can see in this picture. This is also formed by obviously cooling of the lava on the surface of the earth. Now because it is very dense, ये आपका roads की construction में use होता है. Then second is your obsidian. ये आपका जैसे पहले के दो आपने पढ़े हार्ड होते हैं, ये जो आपका रॉक होता है igneous rock, it is smooth, ऑलमोस्ट ये आपका ब्लैक ग्लास की तरह दिखाई देता है बिकॉज इट इज वेरी शाइनी ऑल्सो. ये भी आपका ये सारे के सारे क्योंकि इग्नियस है तो आपके लावा के कूल डाउन होने की वजह से ही ये फॉर्म होते हैं. नाउ ड्यू टू इट्स शार्प एजेस, एज यू कैन सी इट हैज वेरी शार्प एजेस. ये टूल्स को कट करने के लिए एंड वेपन्स को बनाने के लिए यूज में आता है. अपार्ट फ्रॉम दैट ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स को बनाने के लिए भी ये यूज करा जाता है. देन वी हैव ग्रेनाइट, अनदर टाइप ऑफ igneous rock. Now when magma cools down below the earth surface, अभी सारे जो आपने देखे ऊपर तीनों, ये लावा कूल डाउन हो रहा था, यानी कि बाहर आ गया था फिर कूल डाउन हुआ. ग्रेनाइट अर्थ के सरफेस के अंदर ही, क्योंकि मैग्मा है, मैग्मा अंदर होता है, सो मैग्मा अंदर ही आपका अर्थ की सरफेस पे ही कूल डाउन हो जाता है, तब आपका ग्रेनाइट फॉर्म होता है विच इज इन रेड, पिंक, ग्रे और व्हाइट इन कलर. ये आपका क्वार्ज से बनता है, फेल्सपार, माइका, अलग अलग इसमें आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको दिखाई देगी. एंड अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल किचन स्लैब्स जो आपके बनते हैं जिस पत्थर से, इट इज ग्रेनाइट. देन फ्लोर टाइल्स में आपका ग्रेनाइट यूज होता है टू मेक स्टैचूज. द स्टेयर, बिल्डिंग्स वगैरह की फॉर्मेशन में आपका ग्रेनाइट यूज होता है. As we know, there are many kinds of rocks on earth. One of the rock is sedimentary rock. What is sedimentary rock? What is the role of sedimentary rock? What is the importance of sedimentary rock? Sedimentary rock का importance क्या है, इसका role क्या है अर्थ पर? चलिए इसे और अच्छे से डिटेलिंग में जान लेते हैं. Now students, second type of rocks is sedimentary rock. Sediment का मतलब क्या होता है, कोई चीज कहीं से फ्लो होकर आ रही है and it has started to settle down at some point. Sediment होने का मतलब है settle down. तो रेन, विंड, रिवर्स, स्ट्रीम्स जैसे ही माउंटेन से नीचे की तरफ आती है, व्हेन दे कम डाउनवर्ड्स, सो दे कलेक्ट जितना भी साइड में आपका रॉक्स हो गया, कुछ भी मटेरियल जो भी उनके रास्ते में आता है, दे ब्रिंग देम डाउन. तो जहां जहां पे आपके ये सेडिमेंट होते हुए जाते हैं, यही पत्थर, वहां पे आपके सेडिमेंट रॉक्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं. नाउ दीज आर कॉल्ड सेडिमेंट्स. जितनी भी डाउनवर्ड मोशन में रिवर्स अपने साथ कोई भी मटेरियल लेकर आ रही है, जहां पे छोड़ दिया वहां पे वो सेडिमेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं. अब इन्हीं की लेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है. दे स्टार्ट टू सेडिमेंट और डिपॉजिट एट सर्टेन प्लेसेस इन लेयर्स. एंड ये लेयर्स क्योंकि अलग अलग मटेरियल्स नीचे आते हैं, अलग अलग मिनरल्स के होते हैं, सेटल होना स्टार्ट होते हैं, वहां से बनते हैं फिर आपके सेडिमेंट्री रॉक्स. नाउ सैंडस्टोन इज वन टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक. बहुत सॉफ्ट रॉक होता है, ये आपका सैंड पार्टिकल से बना होता है. इसमें भी आपके बहुत सारे मिनरल्स होते हैं लाइक सिलिका एंड क्वार्ट्ज. पिंक, येलो, रेड कलर में आपको ये देखने को मिलेगा. रेड फोर्ट, इनफैक्ट जो आपका कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट हो गया, कुतुब मीनार हो गया, जो दिल्ली में आपके मॉन्यूमेंट्स हैं, दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन. नाउ 70% of all the rocks on the earth are sedimentary rocks. तो जितने भी आप तीन टाइप के अभी हम पढ़ रहे हैं, उसमें से जितने भी वर्ल्ड में आपको रॉक्स देखने को मिलते हैं, आप 70% अप्रोक्सीमेटली रॉक्स आपके सेडिमेंट्री रॉक्स हैं. देन वी हैव शेल. यह आपका क्ले की लेयर से बना होता है. यह आपको बहुत वाइड रेंज ऑफ कलर्स में मिलेगा लाइक रेड, ब्राउन, ग्रीन एंड ब्लैक. एंड ये आपका ब्रिक्स एंड टाइल्स बनाने के लिए यूज में आता है बिकॉज इट हैज वेरीड कलर्स. देन वी हैव लाइमस्टोन. यह आपका कैल्साइट एक मिनरल होता है, उस मिनरल से ये बना होता है फ्रॉम द शेल्स ऑफ स्मॉल क्रीचर्स. कुछ स्मॉल लिविंग बींग्स होते हैं जिनके शेल्स बहुत हार्ड होते हैं, उस शेल में कैल्साइट होता है, उस मिनरल से आपका बनता है लाइमस्टोन. चॉक्स वगैरह आपके लाइमस्टोन से बनते हैं. देन चॉक इज यूज्ड टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड्स. सीमेंट हो गया, ब्रिक्स हो गया, ग्लासेस हो गए, इन सभी में आपके लाइमस्टोन का यूज करा जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, देयर इज एन एक्टिविटी एंड दिस यू हैव टू डू ऑन योर ओन. Then we have conglomerate, another type of sedimentary rock. ये आपके rounded pebbles से बना होता है that are cemented together with sand and minerals. And ये आपका कहाँ यूज होता है? मैक्सिमम आप देखेंगे, मैक्सिमम आपके ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स या फिर कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, and other for polishing the ornaments. We have learned about sedimentary rock. Now we will learn about metamorphous rocks. What is metamorphous rocks? How does it works? How it is important to us and how it is useful for us? और इससे क्या क्या
जो चीजें हैं वो बनाई जाती है। चलिए इसे और अच्छे से डिटेलिंग के साथ में जान लेते हैं। Now students, let us study about metamorphic rocks. Now metamorphic का मतलब क्या होता है? चेंज होना. So metamorphosis के थ्रू चेंज होते होते आपके ये रॉक्स बनते हैं. सी बहुत ज़्यादा हीट प्रेशर के अंडर या इन्फ्लुएंस में आके जितने भी आपके मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं सेडिमेंट्री या इग्नियस रॉक्स में, दे अंडरगो चेंजेस. तो आपके ये जो इनिशियल फॉर्म्स होती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स की, वो एक्चुअल में इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री होती है, बट under extreme heat and pressure they undergo change and then they get converted into metamorphic rocks, metamorphose or change, and these kinds of rocks are known as metamorphic rocks. For example, marble, quartzite, gneiss, ये सारे आपके अलग अलग टाइप के metamorphic rocks है. Like marble, ये भी आपका limestone जो आपका एक sedimentary rock है, वो चेंज होता गया, मेटामॉर्फोज होता गया और फिर आपका बन गया मार्बल. ये आपका कहाँ यूज होता है? फ्लोरिंग में आपके मार्बल्स लगाए जाते हैं स्टैचूज बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए. ताजमहल जो आपका है, इट इज अ वेरी फाइन एग्जांपल ऑफ व्हाइट मार्बल. देन वी हैव क्वार्ट्जाइट. ये आपका सेडिमेंट्री रॉक सैंडस्टोन से बना है, चेंज होता गया सेडिमेंट्री रॉक सैंडस्टोन और आपका बन गया क्वार्ट्जाइट. बहुत हार्ड रॉक ये होता है एंड इज वेदर रेजिस्टेंट. ऑब्वियसली बात है, इतने वेदर कंडीशंस को चेंज हो के वो ऐसे बने हैं, तो ये आपके वेदर रेजिस्टेंट भी बन जाते हैं, यानी कि किसी मौसम में खराब ये नहीं होते हैं. ग्लास, सेरेमिक इंडस्ट्रीज में आपके ये यूज करे जाते हैं एंड देन ज्वेलरी या फिर ऑर्नामेंट्स बनाने में भी. देन वी हैव स्लेट. शेल जो आपका एक टाइप का सेडिमेंट्री रॉक था, वो मेटामॉर्फोज हो के आपका बन गया स्लेट. दिस इज ऑल्सो हार्ड. स्मूथ रॉक में भी आपको ये देखने को मिलता है, जो आप आसानी से आप लेयर्स में स्प्लिट कर सकते हैं, या आपका स्लेट्स, टाइल्स या फिर ब्लैक बोर्ड्स बनाने के लिए यूज में आता है. देन वी हैव जिनीस. ग्रेनाइट जो आपका एक टाइप का इग्नियस रॉक था, ये चेंज हो के आपका जिनीस बन गया. स्ट्रिप्ड ये होता है, जैसा आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है, यू विल सी स्ट्रिप्स और स्ट्राइप्स, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, ऑन इट. स्ट्रीक्ड अपीयरेंस होती है बिकॉज इसमें आपके अलग अलग डिफरेंट मिनरल्स यू विल सी, एंड ये आपका स्पेसिफिकली बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज आता है. नाउ स्टूडेंट्स, टेक योरसेल्फ इन दीज क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर ऑन योर ओन. We have learned about rocks, their types, their uses and many more things. Now we will learn about minerals. What is minerals? How many kinds of minerals are there and how minerals are important for us? इसका रोल क्या है मिनरल्स का हमारी लाइफ्स में? चलिए इसे और अच्छे से डिटेलिंग के साथ में जान लेते हैं. Now students, let us study about minerals. What are minerals? Minerals are building blocks of rocks. अभी हमने पढ़ा था अलग अलग रॉक्स में मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी अलग अलग होती है. So minerals are actually the building blocks of the rocks. ये आपको अर्थ में नेचुरल फॉर्म में मिलेंगे. Then you can see them in the chemical substances also, and then you will see them in the dirt rocks and water also. Now minerals are also of two types, metallic and non-metallic. Let's study about metallic. Now what are metallic minerals? These are those minerals which are useful metal from which useful metals are obtained. नाम में metallic आ रहा है, तो इससे आपके बहुत useful metals extract किए जाते हैं, like iron, copper, bauxite, manganese. फिर इनको आपके ज्वेलरी में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, मशीन्स और अलग अलग पार्ट्स ऑफ व्हीकल्स और अलग अलग चीजों में यूज करा जाता है. Book 4, Chapter 6. Hi students, I'm Simran with you, and today's topic is clothes we wear. Why exactly we need clothes and how many different types of clothes do we have is what we are going to read in this chapter. So about the lesson, why do we wear clothes, sources of clothes, seasonal clothes, special clothes, national dresses, and then we will learn about how do we take care of these clothes. Now tune up, identify the given fabrics and write down their names, and here you have to write down the names of all these types of dresses. So पहले के time पे भी how did exactly this fashion of wearing clothes started? In early times also, when human beings lived in the caves, उनके पास कपड़े नहीं हुआ करते थे. दे जस्ट यूज टू कवर देमसेल्व्स विद द लीव्स. फिर धीरे धीरे इन्होंने बार्क्स को स्टिच करना शुरू करा, फिर धीरे धीरे फैब्रिक का पता लगने लग गया, एंड दैट्स हाउ then they started using wool also. sheep के wool से बनाने लग गए, and that is how they knew कि अब हम कपड़े भी फैब्रिक से भी अलग अलग टाइप के कपड़े स्टिच होके बन सकते हैं.
Now students, why do we wear clothes? Then we have atomic energy. An atom is almost the smallest particle of matter, और ये जो atomic energy होती है आपके atoms को split करने से इस energy को generate करा जाता है, and it is used and it should be used only for the benefit of the mankind, but ये आपकी negative चीज़ों के लिए भी use हो रही है, for example your bombs, जिसकी वजह से बहुत हज़ारों लाखों लोग अपनी ज़िंदगियाँ गवा देते हैं. Then we have energy from different kinds of fuels. For example, you have buses, trucks, vehicles आपके जितने भी चलते हैं, machines हो गई कुछ, वो आपके कुछ fossil fuels की वजह से चलती हैं. For example, आपका पेट्रोल हो गया, CNG हो गया, डीजल हो गया, इनको बर्न किया जाता है, उसके बाद आपका हीट जनरेट होता है और उसके बाद आपका क्या होगा? That particular vehicle starts working properly. Now students, let us study about machine. So what is machine? ये आपका सिंपल टूल होता है जिससे बेसिक मशीन का काम क्या होता है? आपके काम को और भी ज़्यादा ईजियर कर देना. ईज आउट आप कर दो, आपके काम को आसानी से आपका काम हो जाए, वो आप इसीलिए आपकी मशीन का इन्वेंशन किया गया है. सो विद द हेल्प ऑफ मशीन्स वी कैन डू वर्क विच वुड अदरवाइज बी इम्पॉसिबल, या फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हमारे लिए हो जाता. स्क्रू ड्राइवर्स हो गए, बाइसिकल्स हो गई, ये आपके अलग अलग टाइप की मशीन्स हैं जिसकी वजह से वी आर एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद मच मोर लेस एफर्ट्स दैन अर्लियर रिक्वायर्ड. Now students, let us study about different types of machines. So basically machines are of two types, simple machines and then we have complex machines. So what are simple machines? ये भी आपके काम को easy out करने के लिए use में आती हैं, and these help us to change the direction of the force. For example, these simple machines जो आपकी होती हैं, जैसे आपका scissors हो गया, hammer हो गया, देन यू हैव बॉटल ओपनर, ये भी आपके सिंपल मशीन में आती हैं. ये भी आप फोर्स अप्लाई करते हैं, आप आसानी से आप बॉटल ओपनर से बॉटल खोल सकते हैं, हैमर से आप कील को अंदर डाल सकते हैं. सो दीज आर ऑल योर सिंपल मशीन्स. देन वी हैव कॉम्प्लेक्स मशीन्स, जिसमें आपकी दो या दो से ज़्यादा सिंपल मशीन्स को कंबाइन किया जाता है और तब आपके बनाए जाते हैं कॉम्प्लेक्स मशीन्स. सो दीज आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स, जिसमें आपका कार, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, बाइसिकल, ये सारे आ जाते हैं. Now students, let us do an activity, and this you have to do on your own. Now let's enrich your vocabulary. What is force? Push or pull applied to any object. Friction, when two surfaces are in contact with each other. And machine, a tool. A is for science, book 4, chapter 8. Hi students, I am Simran with you, and today's topic is natural resources. So what we will be reading in this chapter is what are natural resources and protection of these natural resources. Now let's tune up. Paste the pictures of any 3 natural resources in the space given below and write their names also. So now, natural resources are the materials that we get from the earth that are used to meet. We have learned about so many things in this chapter about rocks, their types and minerals also. I hope you have understood each and every detail of minerals and rocks in this chapter. अब आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस, इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों करते रहिएगा ताकि आप इसे कभी न भूलें.